Today we will continue our theme first, bricks, beads and bones. In our earlier video, I had you explain beginning, first topic first, beginnings, topic second, substances, strategies, topic third, Mohenjo-daro, upland urban center. Now we take our topic fourth, tracking social differences. 4.1 subtopic is burials, antyestry. Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among its people living within a particular culture. These include studying burials. आर्कोलॉजिस्ट या हमारे जो इतिहासवेदा हैं सामान्य रूप से उन्होंने ये स्ट्रेटजी फाइंड आउट की कि उस टाइम पर सोशल या सामाजिक और आर्थिक डिफरेंसेस क्या थे लोगों के या लोगों की कल्चर में, जो उनका पर्टिकुलर कल्चर था, जो उनका रहन सहन था, उनका रहने का जो उनकी संस्कृति थी, उसमें क्या डिफरेंसेस थे. दीज इंक्लूड, इनमें हम बैरियल्स या अंत्येष्टि के बारे में भी स्टडी करेंगे. You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried. इनमें कुछ ऐसे हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं, जैसे पिरामिड ऑफ इजिप्ट. उनमें से कुछ आधुनिक हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं. कुछ ऐसे पिरामिड्स हैं जो रॉयल बरियल्स हैं या शाही अंत्येष्टि से रिलेटेड हैं. कुछ इनॉर्मस, उनमें बहुत अधिक इनॉर्मस या विस्तृत रूप से इनमें वेल्थ को, संपत्ति को बरीड किया जाता था. एट बरियल्स इन हरप्पन साइट्स द डेड वर generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. Could these variations be an indication of social differences? We are not sure. अब जो ये बरियल्स थी हड़प्पन साइट्स पर, जो डेड्स को जनरली एक पिट में लेट किया जाता था, उन्हें लिटाया जाता था, और उनके साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिले हैं कि उनमें ब्रिक्स या ईंटों के द्वारा ही उनका स्पेस बनाया जाता था. कुछ उनमें सोशल कहीं कहीं पर वेरिएशन भी है, डिफरेंसेस भी है, हम उसमें पूरी तरह से श्योर नहीं हैं. सम ग्रेव्स contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the art after life. कुछ ग्रेव्स में कुछ पोट्री या ऑर्नामेंट्स भी रखें, शायद वो ये इंडिकेट करते हैं कि उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद या आफ्टर डेथ के बाद भी जीवन होता है. ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बैरियल्स, बोथ मैन और वुमेन. ज्वेलरी भी इनमें बैरियल्स में मैन और वुमेन दोनों के ही बैरियल, दोनों की कब्र में पाई गई है. इनफैक्ट वास्तव में जो हमें खुदाई में हड़प्पन साइट्स में जो मिड 1980s में हमें प्राप्त हुए हैं, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone beads, and 100 of micro beads was found near the skull of a male. In some instances, कुछ ऐसे उदाहरण हमें मिले हैं जो डेड बाइट किए हैं, उनमें कॉपर मिरर. But on the whole, it appears that the Harappan did not believe in burying precious things with the dead. लेकिन कुछ चीज़ें हमें ये शो करती हैं कि हड़प्पन लोग विश्वास नहीं करते थे प्रेशियस थिंग्स को डेड के साथ बरीड करने के लिए. नेक्स्ट सब टॉपिक 4.2 is looking for luxuries. Another strategies to identify social differences is to study artifacts, which are archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. The first category include objects of daily use made very easily out of ordinary materials such as stone or clay. These include coins, pottery, needles, fresh rubbers, body scrubbers, etc., and are usually found distributed throughout settlements. Archaeologists assume objects were luxuries if they are rare or made from costly non-logical materials or with complicated technologies.
अब ये जो हमें आर्टिफैक्ट्स, जो हमें चीज़ें मिली हैं, उनको देखकर लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लग्जरीज में यूज़ की जाती थी और कॉस्टली थी, जैसे कि आपको बॉडी स्क्रबर भी मिला है। 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस आर मटेरियल टेक्नोलॉजीज, ए मटेरियल्स मेड ऑफ ground sand or silica mixed with color and a gum and then fired were probably considered precious because they were difficult to make. The situation becomes more complicated when we find what seems to be articles of daily use, such as spindle wheels made of rare materials such as fines. Do we classify these एज यूटिलिटेरियन और लग्जरीज? क्या हम इनकी उपयोगिता या उनकी लग्जरीज के द्वारा इनको क्लासीफाई कर सकते हैं? जो हमें ये आर्टिफैक्ट्स मिले उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, उनकी स्टडी को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हम ये देखेंगे कि जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कंसंट्रेटेड हैं, उनको सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा रायरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट, मुश्किल से ही वो स्मॉलर सेटलमेंट में मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे जो मिनिएचर पॉट्स हैं फैंस के, परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल, आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। शायद वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में उनका शायद वो लोग परफ्यूम की बॉटल के रूप में यूज़ करते होंगे। और कुछ सेटलमेंट्स हैं जैसे कालीबंगन में गोल्ड टू वॉज रायर, गोल्ड भी मुश्किल से ही मिला है। एट प्रेजेंट probably precious all the gold jewelry found at हड़प्पन साइट was recovered from hoards। हो सकता है कि जो हड़प्पन साइट्स में जो गोल्ड है उसको संभाल कर या कलेक्ट करके बड़े बड़ी चीज़ों में उसको कलेक्ट करके रखते होंगे। नाउ वी टेक अवर टॉपिक 5, फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देखें, उसके बारे में जाने, तो हम देखेंगे मैप फर्स्ट में लोकेट है जो चौंधारो एक प्लेस है, वहाँ पर जो टिनी सेटलमेंट्स मिले हैं वहाँ पर, उससे हम कंपेयर करेंगे मोहनजोदाड़ो से। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूड बीड मेकिंग, शैल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ये हमें ऑब्जेक्ट्स वहाँ से मिले हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी वेरिएशन है इन मटेरियल्स में जो एक बीड्स बहुत ही रिमार्केबल हैं, जैसे कार्लियन जो ब्यूटीफुल रेड कलर का, जस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, एनेस्टीटाइट, मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, एंड शेल फाइनेंस एंड टेराकोटा और बर्न क्ले। कहीं कहीं पर बहुत सारे सीमेंट या स्टोन्स हमें मिले हैं, गोल्ड कैप्स लगे हुए सेम एज शेप्स के, और न्यूमरस बहुत सारी अलग अलग शेप में, जैसे सिलेंड्रिकल है, स्पायरिकल है, बैरल शेप्ड, सिगमेंट, सम वर डेकोरेटेड, पेंटेड। इस तरह से हमें डिफरेंट टेक्निक्स के बीड्स भी प्राप्त हुए हैं। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स, इनकी जो टेक्निक है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग थी। स्टेटाइट जो था सॉफ्ट स्टोन था जो कि इजीली जिसके ऊपर वर्क किया जा सकता था। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विथ स्टेटाइट पाउडर। कुछ ऐसे स्टोन हैं जो स्टेटाइट पाउडर से बने हैं और इनको डिफरेंट वैरायटी और शेप से बनाया जा सकता था। आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो रेड कलर और काले obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Noodles were chipped into rough shape के भी हमें नूडल्स मिले, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिल, ये भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस में इन सबको किया जाता था। जो आपका चौंधारो, लोथल और धोलावीरा, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर स्पेशलाइज था ड्रिल के लिए। अगर हम नागेश्वर और बालाकोट में देखें तो हम वहाँ पर भी नोटिस करेंगे ये सेटलमेंट्स थे जो समुद्र तट के निकट वहाँ पर स्थित थे, और इनमें बेंगल्स हैं, लेडलेस, नेली और बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। चुंधारो और लोथल से यहाँ पर ये अर्बन सेंटर से जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से यहाँ पर बीड्स ले जाए जाते थे। नाउ फर्स्ट 5.1 टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। आर्कोलॉजिस्ट ने यूजुअली look for the following: raw materials such as stone, noodles, whole shells, copper or tools, unfinished object rejects and waste materials. In fact, waste is one of the best indicators of craft work. For instance, example के लिए जो stone objects हैं, shells हैं,
तो इन मटेरियल्स को जो इनका प्रोडक्शन था वो वेस्ट मटेरियल वो पीसेस में किस तरह से उनको यूज़ किया जाता होगा, कैसे उनको कट करके इन ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता होगा। समटाइम्स कभी कभी ये जो लार्जर वेस्ट पीसेस हैं वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, उनको स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में यूज़ किया जाता था। मानस्कुल्स बिट्स, छोटे छोटे बिट्स में वहाँ के कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड थे। नाउ वी टेक अवर टॉपिक 6 स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। एज ऑब्वियस इस तरह से क्लियर है कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसका वहाँ पर यूज़ किया जाता था, वैरायटी ऑफ यूज मतलब डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता था। वहाँ पर इजीली क्ले भी अवेलेबल थी, तो इसलिए टेराकोटा टॉय मॉडल्स और बुलक कार्ड्स भी यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टिंग के इम्पॉर्टेंट मीन्स मिले हैं। 6.1 subtopic is materials from the subcontinent and beyond. The Harappan procured material for craft production in various ways. For instance, एग्जाम्पल के लिए हम देखें जो ये सेटलमेंट है नागेश्वर, बालाकोट पर भी ये शेल्स अवेलेबल थे, और दूसरी साइड पर शॉर्तगई, अफगानिस्तान, लैपिस लाजुली, ब्लू स्टोन वो वहाँ पर हाईली वैल्यूड था। इस तरह से डिफरेंट जगह पर राजस्थान से भी भरौच जो कि गुजरात में, वहाँ से डिफरेंट तरह के मेटल्स यहाँ से यूज़ किए जाते थे। इंडिया से गोल्ड भी लेके जाया जाता था। कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़ से किया जाता था। देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर वॉट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुर कल्चर with its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects. Is it possible that the inhabitants of these regions supplied copper to the Harappa? Now we take about subtopic 6.2 contact with distant lands. रिसेंटली हम आर्कियोलॉजिस्ट को देखेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे जो उन्हें कॉपर जो प्रॉबेबली वहाँ पर ओमेन एक प्लेस थी वहाँ से ले जाया जाता था, जो कि अरब पेनिनसुलर में लिया जाता था, अरब पेनिनसुलर से लाया जाता था। केमिकल जो एनालाइज हैं वो भी यहाँ पर शो होते हैं। ओमानी कॉपर भी यहाँ का एक स्पेशल आर्टिफैक्ट्स है। और मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो ये इसको रेफर किया जाता है 3rd मिलेनियम में BC में, कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मेगन। मेगन एक प्लेस थी, वहाँ से कॉपर ले जाया जाता था। नेक्स्ट, Mohenjo-daro. Mesopotamian sites also contain traces of nickel. Other archaeologists suggest distance contact include Harappan seal, weight, dice and beads. दूर दूर से भी इनका जो कॉन्टेक्ट था वो होता था, क्योंकि वीट के बहुत सारे ऐसे हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, डाइस बीड्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये इनका जो कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दूर दूर देशों से होता था। मेगन एंड महलवा पॉसिबल Harappan region. They mention the production from Malwa, Carlinal. A Mesopotamia says Malwa, may your birds be the Hadja birds. May it's called the herd in the royal palace. रॉयल पैलेस शाही पर महलों में ये बर्ड्स मिलती थी, शायद इसको पिकॉक का नाम दिया गया। उस टाइम पर इसको देखकर लगता है कि शायद ये पिकॉक होगा। और इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमेन, ओमेन के साथ इसका कम्युनिकेशन किया गया। और मेसोपोटामिया जो कि सी समुद्र से के किनारे बहरीन एक प्लेस है, वहाँ से इसका कम्युनिकेशन किया जाता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलवा एज अ लैंड ऑफ सी फेरर। बिसाइड वी फाइंड depiction of ship and boats on seals.